अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। शहर हैदराबाद के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्लिमानी मेंबर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की जबरदस्त चाहत पेश करने वाली बीजेपी हुकूमत से सवाल किए कि बकरीद के मौके पर जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगाकर क्या बीजेपी हुकूमत बकरों की जगह इंसानी जानों की कुर्बानी चाहती है, जैसा कि वहां पिछले 5 सालों से हो रहा है। इस सवाल पर बीजेपी पार्टी के बहुत सारे एमपीज हंसकर खामोश बैठ गए। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। स्पीकर सर, I stand to oppose the bill. I stand to oppose the bill, sir, and I feel that this is the third historic mistake which our country is committing. The first mistake was committed in 53 by arresting Sheikh Saab, 87 by rigging the elections, and 2019. Definitely BJP has lived up to its electoral promise in their manifesto, but you have not lived up to your constitutional duties. You have indulged in breach of a constitutional promise, sir. I must congratulate the Home Minister for the Pyrrhic victory in eviscerating Article 370, sir. Sir, I am aware that many of the ruling party believe in alchemy, not in science. But transmuting a state into Union territory would make Gogai Pasha and Mandrake the magician go green with envy, sir. This bill is a violation of Article 3. What does this do to the federal polity in India, sir? Sir, in one stroke, you have effaced, the ruling party have effaced the Sarkaria Commission, the Administrative Reforms Commission, and the Raj Manar Commission. I congratulate you. You have definitely taken a dishonorable step in creation of in an authoritarian state, a unitary authoritarian state, sir. Had this issue been done by a governor of a non-BJP, the BJP would have raised how governor is partial to the ruling party. But now when the governor is working on the diktats of the government, the BJP is quiet, sir. Sir, you have ruled on Article 35 and a challenge is presently pending in Supreme Court. And I trust that the constitutional bench of Supreme Court will take up this gauntlet thrown by this government. I want to know from the government, sir, are you planning to implant people as the Israelis? Are you trying to imitate the Chinese? Or are you trying to create a Bantustan as in apartheid South Africa? Sir, the Honorable Home Minister says it was a temporary provision. Sir, I cannot use the flowery language of Manish Tiwari and say, talk about an erotic thriller. But I will definitely say that I hope that the Honorable Home Minister will read erudite judgment of Justice Nariman in SBI versus Santosh Gupta, Supreme Court judgment in SBI Zafarullah, which these two Supreme Court judgments have more wisdom than the Honorable Home Minister. And in that judgment, the Supreme Court said, Mr. Honorable Minister, that the Article 370 is not temporary, it is a special status. Sir, BJP has picked up this tactic from the Nazi manual. What is it called in Nazis? It's called tactic of legality, to subvert constitutional principles and values, sir. Sir, the Jammu Kashmir people from last 90 years have been fighting for democratic rights. I want to know from the Honorable Home Minister, we have used military in Northeast. Why? Because the Northeast people said, we are fighting for our dignity. We have used military force. But despite that, this government, despite the Nagas not laying down arms, you are still talking with them. Why? And the Nagas are saying, give us oil and gas. You are ready for that? This will have a grave implication on the solving of the Naga problem. And I want to know from the Honorable Home Minister, sir, he assumes to be a man with iron fist. But may I remind him that the first iron man in the whole democratic or undemocratic world was called Bismarck, the Iron Chancellor. Even Bismarck said that the iron fist must be used by a velvet. And the velvet was Article 370, which you have made it a hollow. And that is why I have to say, sir, that this government has proved that you are neophytes when it comes to statecraft. You have refused to understand where myth ends and where history begins. And I'm forced to say, sir, I'm concluding, I'm forced to say, sir, that the English proverb,
For they sow the wind and they shall reap the whirlwind. Sir, I want to know when Asaduddin Owaisi can go and buy agriculture property in Himachal Pradesh. I want to know when Asaduddin Owaisi can go to Arunachal Pradesh and Lakshadweep without a permit. I am sure, despite my opposition to all these constitutional arrangements, because I believe more in plurality and diversity, you are going to hand over all these Northeast to the corporate world because you believe in all these issues, sir. Sir, I want to end by talking about how, demographic change. What is there, sir? NRC, CAB? Why don't you release all those Kashmiris? Sir, your MPs are saying this is Diwali. Why can't you leave the whole Kashmiri people? Let them come out. Let them also celebrate. They cannot even use a cell phone. They cannot even go out. What are you talking about? You have created Srinagar as some sort of a West Bank. That is unfortunate, sir. That is why I demand that the government release all prisoners, take away the curfew and ensure that communications are started. Last point, sir. What will happen on Eid? Eid is on Monday. Are you assuming that the Kashmiris should, instead of sacrificing lamb, they should sacrifice themselves? If you want that, I'm sure they'll do that. They have been doing that. And I conclude, sir. I conclude by what an erudite scholar wrote today in an article. He said BJP thinks that it is going to Indianize Kashmir, but instead what we will see is potential Kashmirization of India. You are doing a great disservice. Sir, there will be issues between Dogras and Punjabis in Jammu. There will be issues with Dalits also. There will be, and you mark my words, sir, there will be demand from Hindus of Jammu. Sir, I'm concluding. Please, sir. There will be demand from Hindus of Jammu that why do we live in those two, Pir Panjal and Chenab Valley with Muslims? There will be migration, you mark my words, from Muslims of Kargil. You are underestimating. That is why, sir, I oppose this bill because this government is doing a disservice to Sardar Patel and Nehru. Thank you, sir. तेलंगाना हज कमेटी के आज़मीन हज की रवानगी के मुकम्मल हो जाने के बाद बहुत सारे मिल्लत इस्लामिया के फर्जंदान तौहीद ऐसे खुशकिस्मत भी हैं जिन्हें प्राइवेट ट्रैवल से हज की सादत हासिल होने वाली है। लिहाजा अभी शहर हैदराबाद के मशहूर ज़माना गोल्डन ट्रैवल्स ने आज़मीन हज के 2 काफिले RGI एयरपोर्ट से आज रवाना किए। ट्रैवल्स के जिम्मेदार अब्दुल रज़्ज़ाक क़मर ने इन काफिलों को हरी झंडी दिखाई और बड़े ही रिक्कत अंगेज माहौल में उन्हें विदा किया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने आज मार्कफेड और सीड डिपार्टमेंट के लोगों के साथ एक जायजा इजलास में बतलाया कि हुकूमत रियासती किसानों के लिए बेहतर इक़दामात से जुड़ी हुई है। ज़राअत के लिए खातिर खा पानी, सैर हासिल फर्टिलाइजर्स, जगह जगह बारिश के पानी के कुंटे बना दिए गए हैं। इसके अलावा ज़मीन की ज़रखेज़ी नापने के लिए अलग से कार्ड्स भी मुहैया किए गए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना की कांग्रेसी MLA सीता अक्का ने रियासत के पसमानदा तबकात पर मुसलसल हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ में आवाज़ उठाते हुए आज रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त पेश करते हुए याद दिलाया कि तेलंगाना में ख़ास तौर पर पसमानदा तबकात बड़ी कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और कोई उनका पुरसान हाल नहीं है और हर जानिब इनके लिए सिर्फ दिखावा ही दिखावा किया जा रहा है। जोशी गारिని కలిసి ఈ రాష్ట్రంలో ఆదివాసీల సమస్యల పట్ల, హక్కుల పట్ల చర్చించుకోవడం కోసం మరి ఒక దినం అంటూ ఉంది, ఆగస్టు 9th. ఆ రోజును ఆగస్టు 9వ తారీఖు ఆదివాసీ అంతర్జాతీయ దినోత్సవంగా ఐక్యరాజ్య సమితి 1982లో జెనీవాలో గుర్తించి ప్రకటించడం జరిగింది. సరే, ఆ రోజును మరి ఆదివాసీల అంతర్జాతీయ దినోత్సవాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించి నిధులు కేటాయించి హక్కులు, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, అభివృద్ధి గురించి ప్రజలతో, ఆదివాసీలతోటి, గిరిజనులతోటి మరి ఎక్కడికక్కడ ప్రభుత్వ అధికారులు ఇంటరాక్ట్ అవుతూ వాళ్ళ యొక్క సమస్యల మీద చర్చించడం కోసం ఆగస్టు 9th మరి వేదికగా తీసుకొని సమావేశాలు, సెమినార్లు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి గారిని, అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క పేషీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ఒక లేఖను అందజేయడం జరిగింది. ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో గిరిజనులు అనేక సమస్యలతోటి సతమతం అవుతూ ఉన్నారు. ఒక దిక్కు 30-40 సంవత్సరాలుగా సాగు చేసుకుంటున్నటువంటి భూములు కాళ్ళ కింద నుంచి కదిలిపోతున్నాయి. ఫారెస్ట్ అధికారుల ఇబ్బందులు, దాడులు, అదేవిధంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో ఇప్పటి వరకు పూర్తి స్థాయిలో వైద్య సిబ్బంది లేకపోవడంతో మలేరియా, డెంగ్యూ, మరి డయేరియా లాంటి జబ్బులతోటి కూడా, సెరెబ్రల్ మలేరియా లాంటి జబ్బులతోటి కూడా చనిపోతున్న క్రమంలో ఈ అంతర్జాతీయ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని మరి ఆగస్టు 9th రోజు నిర్వహించడం కోసం ఒక 10 కోట్ల రూపాయలను కేటాయించి కలెక్టర్లకు మరి ఎక్కడికక్కడ ఘనంగా ఈ యొక్క దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తూ ఆ ఆదేశాలు ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా అక్కడటువంటి స్థానిక గిరిజన ప్రజలతోటి ఈ ప్రభుత్వ అధికారులు ఆ రోజు స్పెషల్గా డిస్కషన్ చేస్తూ వారికి ఏమాత్రం అభివృద్ధి జరిగింది, ఇంకా అభివృద్ధి జరగాల్సినటువంటి అంశాలేంటిది, హక్కులేంటిది, కల్చరల్ పరంగా వస్తున్నటువంటి మార్పులు ఏ రకంగా వారి యొక్క జీవన విధానాలు దెబ్బతీస్తున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసి మరి ఒక ప్రత్యేక ఆ యొక్క దినాన్ని ప్రభుత్వమే ఘనంగా నిర్వహించాలని ఈరోజు ప్రభుత్వం దృష్టికి, ముఖ్యంగా ముఖ్య కార్యదర్శి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ప్రభుత్వానికి మీడియా ద్వారా కూడా ఒకటే మేము విన్నపం చేస్తున్నాం. అనేక వర్గాలకు, కులాలకు లేదా సెక్షన్లకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలకు మీరు ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించడం జరిగింది. మరి ఈ దేశంలో, ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యంత వెనుకబడి ఉన్నటువంటి మరి అడవులలో నివసించేటువంటి ఆదిమ తెగల యొక్క అస్తిత్వమే కనుమరుగవుతున్నటువంటి ఈ క్రమంలో మాకంటూ ఒక అంతర్జాతీయ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రకటించిన నేపథ్యంలో మరి ఇప్పటికీ తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ 6 సంవత్సరాలుగా కూడా మీరు ఒక్కరోజు కూడా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ కాలేకపోయినరు, ప్రభుత్వం కూడా కాలేకపోయింది. కాబట్టి ఈ సంవత్సరమైనా వెంటనే నిధులు కేటాయించి ప్రభుత్వము ఈ ఆదివాసీ అంతర్జాతీయ దినోత్సవాన్ని మరి ప్రత్యేకంగా నిర్వహించి
బాధ్యత తీసుకొని మరి నిధులు కూడా కేటాయించాలని ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను. मिल्लत इस्लामिया की कुछ नाम निहाद खवातीन को बहाना बनाकर बीजेपी हुकूमत ने हालिया दिनों में जो 3 तलाक का बिल ज़बरदस्ती कौम पर लाद दिया था, उसके खिलाफ में मुल्क की नुमाइंदा तंजीमें अब जाके जागी हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक वफद दिल्ली पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट के माहिर कानूनदानों से आज मुशावरत किया और बतलाया कि इस इक़दाम के खिलाफ में हुकूमत के ही सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा दायर करेगा। उस वफद में सदर ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ कशवशवी, कर्नाटका की अहले सुन्नत वल जमात के सदर मौलाना सैयद तनवीर हाशमी, इदाराए खतीब दक्कन के सदर मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा खादरी अली पाशा, चिश्ती फाउंडेशन के सदर सैयद सलमान चिश्ती, इनके अलावा माहिर कानूनदां मौलाना सैयद आले मोहम्मद खादरी शब्बीर पाशा एडवोकेट भी उस वफद में शामिल थे। मुल्क के बॉलीवुड, तेलंगाना के टॉलीवुड के शाना बशाना चलने वाले हैदराबाद दक्कन के दक्कन वुड फिल्म्स के शानदार 15 साल मुकम्मल हो जाने पर शहर की एक तंजीम हैदराबाद स्टार अवार्ड्स ने इलाके की एक कॉरपोरेट होटल में हालिया दिनों में ज़बरदस्त जश्न का एहतमाम किया, जिसके मीडिया पार्टनर्स कई शोहरत याफ्ता कंपनियां बनी। इस मौके पर हैदराबादी नजाद कई अदाकारों को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। खास तौर पर बॉलीवुड, टॉलीवुड और फिर दक्कनवुड की एक मशहूर फिल्म भूत भाईजान में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाले सितारे सलीमुद्दीन को एक खास अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म में इन्होंने गैंग लीडर का रोल निभाया था। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अपनी पहली मियाद में हमारे मुल्क भारत में नोटबंदी और GST के साथ सैकड़ों तनाज़ात में घिरी बीजेपी हुकूमत हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में चमत्कारी अक्सरियत हासिल कर लेने के फ़ौरन बाद पार्लियामेंट में रियासत जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को ख़त्म करने वाला बिल लाकर उसे ऐसे उल्टे अंदाज में पेश किया कि उसे पहले राज्यसभा में दाखिल किया और अब अपनी अक्सरियत वाली लोकसभा में इसके लिए बहस शुरू की और ख़बर मिलने तक वो पास कर दिया गया था। ये वही भारत की जम्मू कश्मीर रियासत है जहाँ पर पिछले 5 सालों से बीजेपी हुकूमत ने अपने तारीखी इक़दाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में हज़ारों मुबैना दहशतगर्दों को हलाक करते हुए अपनी चाहत का उस रियासत से दावा पेश किया है और अभी ईद के माहौल में वहां पर कर्फ्यू लगाकर मुल्क में आने वाले हालात की निशानदही भी कर दी है, जबकि अभी सारा मुल्क बीजेपी हुकूमत के ज़बरदस्त इंतशार वाले माहौल में चल ही रहा था और क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी लोग इबरत अंगेज जिंदगी गुजारने पर मजबूर रहे हैं और खुश हैं तो भारत के भगोड़े और गुजरात के सनतकार या फिर बैरूनी ममालिक के भारत आ जाने वाले कारोबारी। अपनी सियासी जिंदगी में गुजरात से ही कई मुतनाज़ा केसेस से दो चार रहने वाले अमित शाह, जिनको वजारत दाखिला का अभी कलमदान दे दिया गया है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ वाले आर्टिकल 370 की मनसूखी वाले बिल को पार्लियामेंट में पेश किया। इस ज़िमन में सिर्फ कांग्रेस पार्टी बहस व मुबाहिसा करते देखी गई, जो अपनी चमत्कारी हार से तारीखी अहमियत खोकर अब अपोजिशन में बैठने पर मजबूर है। महोदय, मैं संकल्प करता हूं
कि यह सदन अनुच्छेद 303 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत घोषणा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसको सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के, जिसे नामत निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित सभी उपबंध बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इस बात के सिवाय कि अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौता जैसा 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा न हो। पिछले 5 सालों से सूरीज़दा हालात से दो चार हो जाने वाली भारत की ही रियासत जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की तंसीख वाले बिल पर अमित शाह ने अपने लंबे चौड़े बयान के बाद कुछ अपोजिशन जमातों की तनकीद को एकदम नकार दिया, जैसा कि बीजेपी हुकूमत इससे पहले से करती आई है, और हुकूमत के किसी भी काम को किसी के भी ना रोकने वाले माहौल में मजीद मजबूती से दोबारा बयान दिया कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई कानून बनाने से कोई भी इन्हें नहीं रोक सकता। भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों का लिस्ट दिया है, उसमें 15वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इसका उल्लेख है। इससे प्रस्तावित होता है कि ये जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद, हमारी सबसे बड़ी पंचायत, पूर्णतः कॉम्पिटेंट। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के संविधान में भी इसकी स्पष्टता है। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटरगल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। इसलिए जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम दोनों चीजें में लेकर यहां पर उपस्थित हुआ। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। भारत की राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ को ख़त्म करने वाले बिल के पास होने पर जम्मू कश्मीर की कुछ एक जगहों पर बीजेपी कारकुन नाचते कूदते दिखाई दिए, जैसे इन्हें सारी दुनिया की खुशियां मैसर आ गई हों।
वाज़ेह रहे कि हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में वेस्ट बंगाल के करीब 45 बीजेपी कारकुनों ने अपनी जानें देकर बीजेपी के कुछ एमपीज को वहां पर जीत दिलाई थी। सालों से हमारे मुल्क भारत से ही जुड़े रहने वाले जम्मू कश्मीर को अभी पार्लियामेंट में अमित शाह ने इसे मुल्क का ही एक अटूट हिस्सा बतलाया है और बिना किसी से मुशावरत किए कि कश्मीरियों को एतमाद में लेने के लिए भारत की पिछली हुकूमतों ने जो हिकमत अमली अख्तियार की थी वो खत्म हो जाने की बात बतलाई है, जबकि सारा मुल्क अभी भारत के भगौड़ों की तरफ से परेशान हाल था। इस पर सोने पे सुहागा कि बीजेपी हुकूमत का नया मोटर व्हीकल एक्ट से अनकरीब सारा भारत अलग से जूझना शुरू कर देगा। भारत की बीजेपी हुकूमत ने पार्लियामेंट में बड़ी उजलत में पेश किए जाने वाले कई बिल्स पर बहस मुबाहिसे के दौरान अभी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद तनाज़े की बात भी ऊपर उठा दी है और बतलाया कि आज से अदालत इस सिलसिले में रोजाना सुनवाई शुरू कर दी है। सलीस निर्मोही अखाड़े ने अपनी दलीलें पेश की और अदालत ने एक बार फिर उन्हें गौर से सुना। वैसे मिल्लत इस्लामिया के 3 तलाक बिल को बिना मुशावरत के पास कर दिए जाने के बाद आगे क्या क्या होने वाला है इसका अंदाजा मुल्क को अब लगा लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर से खुसूसी मौक़िफ़ छीन लिए जाने के बाद एक तरफ अपोजिशन जमातों की जानिब से तनकीदें की जा रही हैं तो दूसरी तरफ सहाफ़त के बाद हल्के भी इस पर उंगलियां उठा रहे हैं। बीजेपी कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की हमेशा मुखालिफ रही है, लेकिन वो इत्तेहादियों के डर से साबिक़ में ऐसा करने से खासी रही है। 2019 में बीजेपी को भारी अक्सरियत मिलने के बाद उसकी हिम्मत और बढ़ गई, चुनांचे उसने अपने देराना मंसूबे को पूरा करने का मौका पा लिया। बाद हिंदुस्तानी सहाफ़ियों ने हुकूमत के इक़दाम की तायद की तो दूसरी तरफ बीजेपी के इक़दाम पर सवाल भी उठाए गए। द वायर ने लिखा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दफ़े 370 की रूह को ही खींच लिया है और मरकजी इंतजाम इलाके के क़याम के जरिए जम्मू कश्मीर को बाटिस्तान बना दिया है। हिंदुस्तान टाइम ने लिखा कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि ओपन हार्ट सर्जरी है जिससे खून ही खून बहेगा। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख खून और बेवफाई से लिखी गई है। उसका कहना है कि नागालैंड को खुसूसी मौक़िफ़ के बारे में बीजेपी क्या मौक़िफ़ रखती है उसको वादे करना चाहिए। अखबार हिंदू ने कहा कि दफा 370 की बर्खास्तगी होने वाली नहीं थी, लेकिन कश्मीर के मसले पर सालिसी का रोल अदा करने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेशकश के बाद हुकूमत फौरी हरकत में आ गई। प्रिंट ने लिखा कि कोई बहस नहीं, कोई तबादला ख्याल नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, मगर दस्तूर तब्दील कर दिया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।